हेलो फ्रेंड्स नमस्कार আপোনালোকলৈ আজি মই নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো মানে এনে ধৰণৰ আপোনালোকে জানেনে কিবা এখন কাৰ্ড চাই পেলাই মানুহৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পাৰে, মানে আপোনাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে বা নহ'লে আপোনাৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে। মানে এখন কাৰ্ড হৈছে টাচ পাত এখনৰ নিচিনা, যিটো টেৰৰ ৰিডাৰ বুলি কয়, মানে টেৰ কাৰ্ড বুলি কয়। আৰু যিজনে মানে এই ভৱিষ্যখিনি মানে কয়, মোৰ বিষয়ে ক'ব মানে মোৰ আগত কি হৈছিলে, মোৰ পিছত কি হৈছিলে, মোৰ ফিউচাৰ কি, মানে এইবিলাক ধৰণৰ মানে মোৰ মানে কথা ক'ব, মানে সেই কাৰ্ডখন চাই পেলাই। তে আজি আহকচোন সেই মানুহগৰাকী কোন হয় আপোনালোকক আৰু মই চিনাকি কৰি দিম, আৰু আপোনালোকক মই দেখাম মোৰ ভৱিষ্যতখিনি, মানে মোৰ আগে পিছে কি হৈছিল কি নাই, ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড সেইবিলাক কেনেকৈ কয় এখন কাৰ্ড চাই পেলাই। ঠিক আছে, তে আহক। মানুহগৰাকী একচুৱেলি হিন্দীত কথা কয়। মই তেওঁক মানে কৈছিলোঁ যে মোৰ ভৱিষ্যতবাণীখিনি চাবলৈ লাগে, মানে মোৰ আগে পিছে কি হ'ব, মোৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা কি কেনেকৈ হ'ব। তো সেইকাৰণে মই মানুহজনক কৈছিলোঁ, কওঁতে মানে মোৰ ৰিডাৰটো চাম বুলি কৈছে, মানে মোৰ ভৱিষ্যতবাণীখিনি চাম বুলি কৈছে। তাকে মই ভিডিঅ' মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিম আৰু আপোনালোককো মই দেখাম কেনেধৰণে চাই আৰু কি কয়। ঠিক আছে, আহক মই মানুহগৰাকীৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, আপোনালোকক পৰিচয় কৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোককো কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ভৱিষ্যতবাণী চাবলৈ মন যায়, বা নহ'লে আপোনালোকৰ এখন কাৰ্ডৰ মাজত মানে কি জীৱনটোৰ মানে জড়িত হৈ থকা নিচিনা তেওঁলোকে জানে, মানে যদি জানিবলৈ মন যায় তে মোক ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব যে মোৰ মানে কি চাবলৈ ইচ্ছা আছিল, বা নহ'লে মোৰ এই কাৰ্ডখনৰ ভিতৰত মোৰোনো এটা কিবা জীৱনৰ কাহিনী আছে নেকি, মানে জানিবলৈ যদি বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ, চেনেলটোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, নটিফিকেশ্যনটো বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে আপোনালোকৰ প্ৰথমে পায়। ঠিক আছে, আহক মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক সেই মানুহগৰাকীৰ লগত মই চিনাকি কৰি দিওঁ। Hi, my name is Ketaki. I am a tarot reader, and I do timeless readings, and I also have I do personal readings. I do pick a card readings on Instagram. My Instagram handle is ketaki.bali, and I do not do time specific readings. Thank you. ठीक है, इसमें लिखा है कि मतलब जैसे कुछ काम करते हो, या कोई कुछ करने को बोलता है आपको, चाहे काम आसान हो या मुश्किल, हमें मतलब अपना जो हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है ना, ताकत, जो भी हमारा वर्थ जो होता है, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये कार्ड बोल रहा है कि कभी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउट नहीं करना है। अच्छा। अपना जो तुम्हारा अंदर जो भी स्किल है, तुम जो भी चीज़ जानते हो, उसको कभी डाउट नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल हो। क्योंकि अगर जैसे जिंदगी आसान होगी तो कोई भी कर सकता है ना। अगर मुश्किलें होंगी तो अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि हम उससे सीखेंगे। राइट, शायद एक बारी ना हमें सक्सेस मिले, दूसरी बारी चाहे ना सक्सेस मिले, तीसरी बारी मिल जाएगा सक्सेस। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हार नहीं मानना है। हाँ, हार नहीं मानना है। ठीक है, उसमें विश्वास करना है। अब ऐसे कभी नहीं करना चाहिए कि मतलब ये बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे सर में दर्द होता है, ये होता है वो होता है। नहीं, ये सब जो हो रहा है ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, ये वाला। और गाइडेंस भी, मतलब अगर आपको गाइडेंस, तो लाइट हाउस है इसका। ये देखो, ये बोल रहा है कि अगर गाइडेंस चाहिए तो लोगों से मांगो, सपोर्ट चाहिए, जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उनसे मांगो, वो जरूर सपोर्ट करेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, देखो बुक्स है इधर, मतलब कि शायद अगर कुछ, मतलब जैसे मुश्किल है कुछ जो भी करना है काम, तो उसके बारे में पढ़ो। जैसे आप YouTube में जाके ऐसे सीखते हो, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो नहीं, तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो तुम रिसर्च करो उसके बारे में। तुम बहुत तरीके हैं उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना और उस चीज़ को सीखना, ताकि आसान, चाहे मतलब जिंदगी मुश्किल है, पर जो हम यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको आसान में बदलने के लिए वो आपके लिए रिसर्च
मतलब करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, ठीक है, सक्सेसफुल होएगा। और कभी अपने आप को छोटा नहीं करना, जैसे कोई बदतमीजी करे या कुछ बोले, हमेशा जानना चाहिए कि वो दूसरे आदमी को नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, राइट। ऑब्वियसली वो तो अपना जो भी बोलेंगे बोलेंगे, तुमको पता है तुम कौन हो, तुम्हारी वाइफ को पता है तुम कौन हो, जो आपके आसपास है उनको पता है आप कौन हो। शायद ये तीसरे आदमी या औरत को नहीं पता कि अंकुर कौन है, तो उसको रहने दो, उसको इग्नोर करो और बस अपनी जिंदगी पर फोकस करो। तुम काफी हो, लिखा है यहाँ पे, आई एम ऑलवेज इनफ, कि आप काफी हो और लोगों का सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनका इतना वो नहीं है। हाँ, नेक्स्ट वन है फ्लावर, ठीक है। इसका मतलब है कि हमेशा चाहे तुम लोगों से झूठ बोलो, कुछ छुपा, कभी कभार हम अच्छाई के लिए छुपाते हैं चीजें, राइट। तो लोगों से छुपा लो, नो प्रॉब्लम, बट अपने आप से जो जैसे आपको फीलिंग हो रहा है अंदर, कुछ भी थॉट्स आ रहा है, जो भी हो रहा है, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना कि जैसे तुमको फीलिंग आता है, जो भी, चाहे तुमको कोई अच्छा लगे, गंदा लगे, सिचुएशन अच्छा लगे, ठीक से नहीं हो रहा है, घर में ठीक से नहीं हो रहा है, फादर के साथ ठीक से नहीं हो रहा है, वाइफ के साथ प्रॉब्लम चल रही है, जो भी, अपने आप, सिर्फ तुम अपने आप को जानते हो अच्छे से, राइट। इवन वाइफ भी इतने अच्छे से नहीं जानती है जो हम अपने आप को जानते हैं, या फिर जो आप अपने आप को जानते हैं, राइट। तो उसमें बोल रहा है कि कभी अपने आप से जो भी फीलिंग होती है अपने अंदर शेयर करो उसको, अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, अपने आप को दुख मत दो कभी भी। तो ये सब बोला है उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ये दोनों करोगे तो बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं आपके लिए 1 साल में। अच्छा, मतलब बेबी हो सकता है, ठीक है, कुछ और करियर में कुछ और करना है वो भी हो सकता है, क्योंकि ये बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब वक्त बुरा होता है अल्टीमेटली, क्योंकि हम उससे सीखते हैं, वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो अल्टीमेटली अच्छा ही मिलता है एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बेबी हो सकता है 1 ईयर में, ओके। करियर मतलब कुछ और अगर करना है वो भी हो सकता है। घर में जो भी सिचुएशन है वो अच्छा हो सकता है 1 ईयर में, ये सब चीजें अच्छी होएंगी। मतलब मनी, हेल्थ, बेबी, फैमिली, और जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो सब अच्छा होएगा 1 ईयर में। अच्छा, जो अभी ये हो रहा है वो टेस्ट है, टेस्ट मतलब देखने के लिए कि ये सह सकता है कि नहीं। अगर ये टेस्ट पास कर दे तो यही मिलेगा एंड में, खुशियाँ, ओके। तो ये सेलिब्रेशन है, ये खुशी का कार्ड है, चेंज का कार्ड है। हो सकता है कई चीजें अपने बारे में, चाहे उसको नहीं अच्छी लगती हो किसी और का नहीं, तो उस पे फोकस करो। शायद आपके अंदर जो चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपको चेंज करना है, तो ये टाइम है चेंज करने के लिए, ये 1 ईयर का जो टाइम है। और इसमें लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल, मतलब बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है 1 साल में, ठीक है। एंड नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, यहाँ पे भी 2 है, 2 + 0 2, 1 + 1 2। सो 2 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। हो सकता है, मतलब 2 मंथ भी हो सकता है, किसी चीज़ का डेट भी हो सकता है, या फिर जैसे अगर फैमिली प्लानिंग करनी है तो बेबी शायद 2 सेकेंड जो भी मंथ में पैदा हो गया, या फिर जो भी अच्छी न्यूज़ जो आएगी वो 2nd मंथ में हो सकता है, या फरवरी में, अभी जो 2nd मंथ है, तो कुछ होने वाला है अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है हॉक स्पिरिट, तो मतलब ये ईगल की तरह है। तो ये बोल रहा है कि हमारे, आपके अंदर जो सोल है आपका, मतलब कभी कभार अगर ऐसा फीलिंग आता है कि जिंदगी पता नहीं कहाँ चल रही है, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी, तो बोल रहे हैं कि जो भी आंसर चाहिए वो तुम्हारे अंदर है,
तुम्हें और किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आंसर अगर तुम अपने अंदर थोड़ा रिफ्लेक्शन करोगे तो तुम्हें वो सवाल मिलेगा, मतलब वो जवाब मिलेगा। ठीक है। और वो बोल रहा है ईगल की तरह होना है, मतलब ईगल्स जैसे जब अपना जो भी प्रे होता है, जैसे चूहा पकड़ना या कुछ भी खाने के लिए, तो उसकी आंखें हमेशा वहीं लॉक हो जाती है। जब वो उड़ रहा होता है, उसको अगर जैसे दिख गया कोई चूहा भाग रहा हो, तो वो यहाँ वहाँ नहीं देखेगा, वो चाहिए मतलब वो चाहिए, तो वो किसी भी तरह उड़ के लैंड करके जो भी करके उसको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारा जो भी गोल है ये 1 साल में, या गोल्स हैं, नजर वहीं होनी चाहिए जो भी तुम आपके गोल्स है। ठीक है। ये ईगल की तरह, और ईगल मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड होता है, क्योंकि एक तो जब वो आसमान में उड़ता है वो सब चीज़ें देख सकता है ऊपर से, एरियल व्यू मतलब मिलता है, राइट। और छोटी वाली चीज़ें भी दिख जाती हैं उनको जो पकड़ना होता है। तो वो बोल रहा है तुम उसकी तरह बनो। पहले अगर तुम अपने आप से पूछो कि मेरी सिचुएशन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़िंदगी वेस्ट है, ये सब खराब हो रहा है, क्यों? तो वो बोल रहा है सब एंगल से देखना है सिचुएशन से पहले। जैसे तुमको आंसर मिलेगा, चाहे वो यहाँ बीच में हो चाहे वो यहाँ हो, अपनी नज़र वहीं लॉक करना है, उस पर काम करो। ठीक है। और ये माउस स्पिरिट, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तुम जैसे इंसान हो, ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ ड्रीम करते हैं, हमें सब बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है ना। वो बड़ी चीज़ को पाने के लिए पहले छोटा शुरू करना होता है। तो इसमें वही लिखा है, छोटी चीज़ें करो। जैसे आप थक जाते हो, सर में दर्द होता है, वो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक टाइम में सब चीज़ें ख़त्म करनी है ना। टाइम मतलब ख़त्म करके घर जाओ, ऐसे करके, है ना। तो वो बोल रहे हैं इसलिए जैसे हेल्थ खराब हो जाती है, कभी कभार ये सोचते हो कि बहुत ही बोरिंग है, नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कभी कभार गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है ना। तो ये कार्ड बोल रहा है कि टाइम पे बड़ी चीज़ें एक साथ पे हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड में चाहे तुम बड़ा करो या छोटा करो तुम्हें मिल जाएगा, राइट। पर तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी। तो बोल रहा है कि अब से जो भी करोगे छोटा छोटा करो। जैसे पहले एक चीज़ ख़त्म करो, थोड़ा रेस्ट लो, फिर नेक्स्ट चीज़ ख़त्म करो। वो बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटा शुरू करना होता है पहले। ठीक है। जैसे चूहे करते हैं, ठीक है। चूहों को जैसे अगर नेट में डाल दो, उसको नेट काटना है, उसका गोल है कि साला मेरे को ये नेट से निकलना है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली उसके दांत इतने बड़े नहीं है कि वो मतलब पूरा खोल के ऐसे निकल जाए, नहीं। वो धीरे 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 काटते रहेगा, वो खुलते रहेगा, खुलेगा और फिर वो फरार हो जाएगा, राइट। तो बोल रहा है ऐसे ही बनो। ये गोल तुम्हारा बड़ा है, पर वो बड़े गोल के लिए पहले छोटे से शुरुआत करनी है, तभी तुम वहीं पे पहुंच सकते हो। ठीक है। तो ये रीडिंग है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं लेटर। इंग्लिश में लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगी। समटाइम्स इट इज़ वंडरफुल टू गिव, बट देर आर टाइम्स यू माइट फाइंड योर सेल्फ ओवर गिविंग। मतलब कि कभी कभार आप लोगों को, क्योंकि दिल बहुत बड़ा है, तो कभी कभार लोगों को कुछ ज़्यादा ही दे देते हो, चाहे वो डिजर्व करते हैं या नहीं, हमको नहीं पता, राइट। आप कभी कभार बहुत ज़्यादा ही, मतलब दिल बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। और मतलब ऐसा लगता है कि मैं अभी दे देता हूँ, सब दे देता हूँ, ये प्यार भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो वो बोल रहा है कि देना दूसरे लोगों को बहुत अच्छा है, पर अपनी लिमिट में देना अच्छा है। ओवर लिमिट में मतलब ज़्यादा देना, चाहे मतलब वो बंदा शायद डिजर्व भी नहीं करता कि उतना मिले उसको, पर आपका पर्सनालिटी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा देते हो। तो बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा देना लोगों को कम करो, दो पर ज़्यादा नहीं देना। क्या होता है जब हम ज़्यादा देते हैं, हमें टायर्डनेस फीलिंग होती है, सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, कुछ
घूम रहा होता है सर में कुछ कुछ थॉट्स, है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जी किसी और को दे रहे हैं जो डिजर्व भी नहीं करता शायद, राइट? और उसकी तरफ से तो वो ले रहा है ना, मतलब बहुत सेल्फिश टाइप का, हाँ दे दे मेरे को। हमारी तरफ से हम प्यार में दे रहे हैं, हम बांट रहे हैं, राइट? तो ये कार्ड बोल रहा है कि कभी भी उतना बांटो जितना तुम दे सकते हो, थोड़े में, ज्यादा में कभी नहीं, चाहे वो प्यार हो, अपना टाइम हो, पैसे हो, जो भी हो, राइट? ओके, तो बोल रहा है नाउ माइट बी अ गुड टाइम टू चेक इन एंड सी वेयर यू माइट बी कटिंग ऑफ। हाँ, तो वो बोल रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी खुशियां हैं वो ब्लॉक हैं अभी। क्यों? वो बोल रहा है कि अभी ये टाइम, 1 ईयर का टाइम बहुत अच्छा है कि तुम चेक करो क्यों ब्लॉकेजेस आ रही हैं तुम्हारी जिंदगी में, क्यों तुमको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि सब वेस्ट है, क्यों तुमको ऐसा आ रहा है कि सब बोरिंग है, क्यों ऐसा लगता है कभी कभार कि मैं थक गया हूँ। वो बोल रहे हैं कि अपने अंदर पूछो, क्योंकि ये जो भी खुशियां हैं आ रही हैं पर अभी ब्लॉक है, क्योंकि बहुत चीज़ें आपके अंदर हैं जो पहले सोचना है उसके बारे में क्या है, फिर जब सोच लिया उस पर वर्क करना है, काम करना है उस पर, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि सिर्फ आंसर तुम्हारे पास है कि क्यों ये ब्लॉकेज आ रहा है। अबंडेंस लिखा है इसमें। अबंडेंस मतलब कैन बी मनी, फैमिली प्लानिंग, ओके, कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में या पेरेंट्स के बीच में, राइट? काम, हेल्थ, ये सब चीजें। तो इस सब में ब्लॉकेज मतलब बहुत कम। वो बोल रहा है कि ये सब अबंडेंस मतलब जो सारी खुशियां हैं हमारी जिंदगी में, जो जो हमें चाहिए होता है, वो अभी स्लो जा रहा है मतलब इतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, जिसके बारे में ड्रीम किया है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर कुछ डाउट है, वो डाउट को क्लियर करना है, जो आंसर आपके पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है? तो इसमें बोला है लेट अदर्स गिव टू यू इवन इफ यू आर मोर कंफर्टेबल बीइंग जनरस। तो इसमें बोला है आप ऐसे इंसान हो जो जो देना पसंद करते हो, राइट? अपना टाइम, अपना प्यार, जो भी रेस्क्यू करते हो, मतलब अगर कोई मुश्किल में है एडवाइस दोगे, सजेशन दोगे, मदद करोगे, राइट? हीलर मतलब जैसे कोई बीमार हो गया तो देखभाल करोगे, राइट? तो ऐसे टाइप की पर्सनालिटी है, राइट? तो वो बोल रहा है कि तुमने बहुत दे दिया लोगों को, अब उनकी बारी है तुम्हें देने के लिए। क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा देते हैं ना, लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। वो एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि हाँ ओ मैं नहीं दे सकता, सॉरी यार मेरे पैसे नहीं है, यार टाइम नहीं है, काम पे जाना है, यार ये नहीं है, वो नहीं है। पर जब हम देते हैं तो ऐसे खुलेआम मतलब लेते रहो, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि अब टाइम आ गया है कि दूसरी पार्टी को देने दो। और अगर नहीं देते हैं तो मतलब वो तुम्हारे फ्रेंड लायक नहीं है, या फिर तुम्हारी सराउंडिंग में यूजलेस, मतलब नहीं है, ठीक है? इन द आर्ट ऑफ लिविंग वी समटाइम्स ओवरलुक एन इम्पोर्टेंट स्किल रिसीविंग डिमिनिशिंग आंसर, ओके। हाँ, तो वो बोलते हैं कि एक स्किल होता है जब हम रिस्पेक्ट से लेते हैं चीजें, ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू बोल के लेते हैं, राइट? जो भी हमें भगवान ने दिया है, माँ बाप ने दिया है, राइट? सोचे बिना कि शायद वो हमें, मतलब हम ज्यादा लें या ज्यादा दें, जो भी हम हमेशा सोचते हैं कि वाओ इतना सब मिल रहा है, वाओ ये मुझे इतना दे रहे हैं, राइट? पर हम कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते कि शायद ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, राइट? तो ये बोल रहा है कि अगेन तुम सोचो। इसमें बोला है कि अभी तुम्हारे पास तुम्हें जो भी चाहिए जिंदगी में वो नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल है। अगर आ भी रहा है बहुत मुश्किल से आता है, राइट? क्यों? सोचो इस बारे में, क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद तुम कुछ ज्यादा ही दे रहे हो,
कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे हो, कुछ ज़्यादा ही एफर्ट दे रहे हो, जो नहीं देना चाहिए, हमेशा लिमिट में देना चाहिए, राइट। तो वो बोल रहा है कि अगेन पूछो अपने आप से अंदर, क्या मैं ज़्यादा देता हूँ लोगों को? जब मैं ज़्यादा देता हूँ तो लोग खुशी खुशी इंटरेस्ट दिखाते हैं, जब मैं वो ले लेता हूँ तो कोई पूछता ही नहीं है मुझे। क्यों होता है ऐसे? पूछो अपने आप से। फिर हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ये एक्सचेंज ऑफर की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं तुमको दे रहा हूं, मतलब जैसे कोई और सोचेगा कि अरे अगर तू मुझे ये देगा तो मैं तेरा फ्रेंड बनूंगा। ऐसे नहीं होता ना जिंदगी। नहीं, एक्सचेंज ऑफर नहीं है ये। मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छे मन से दे रहा हूँ, तुम्हें लेना है तुम लो, नहीं लेना बाहर में जाओ, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जिंदगी एक्सचेंज नहीं होती। जस्ट बिकॉज हम दे रहे हैं, क्या पता मिले ना मिले इन द वर्ल्ड। मतलब तुम अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छे इंसान हो, अच्छा कर रहे हो, सबकी सलामत चाहते हो, राइट। नाउ वो बोल रहा है कि अब दुनिया को तुम्हें वापस देने दो, तुमने बहुत कर लिया, रेस्ट करना है अभी, अभी यहां से आने दो, यहां से बहुत हो गया, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अब यहां से आने दो, देने दो उनको, अब तुम्हें सपोर्ट देने दो, तुमको आंसर मिल जाएगा। वो बंदा या फिर वो बंदी जेन्युइनली सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब यस अच्छे फ्रेंड्स हैं, नहीं दे रहे तो आंसर है ना, कि मतलब ऐसे ही मतलबी टाइप के, राइट। एंड देन ये बोल रहा है कि जो भी अपने दिमाग में, जो तुम इतना सोचते हो हमेशा, जो भी कहानियां बनाई हैं दिमाग में, ऑब्वियसली वो रियल लाइफ में तो सच नहीं है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी अपने दिमाग में सच्चाई बनाई है, जो भी कहानी बनाई है, सच्चाई नहीं, कहानी जो बनाई है, वो सब छोड़ दो, क्योंकि ओवर थिंकिंग बोलते हैं उसको। तुम जितना सोचोगे तुमको और तकलीफ होएगा। अभी सब मतलब तुम वो कंट्रोल करो जो तुम कर सकते हो, वो कंट्रोल करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो छोड़ दो। लाइफ अपने आप कंट्रोल करेगी उसको, अगर करना है तो, राइट। हाँ, तो बोलता हाँ, तो इसमें लिखा है कि तुम्हें हर चीज अकेले करने की जरूरत नहीं है, हेल्प के बिना नहीं। और अगर तुम लोगों से पूछोगे सपोर्ट देने के लिए तो वो देंगे, कई जेन्युइन लोग देंगे, जो अच्छे लोग हैं, दिल के साफ हैं, जो मन के सच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, वो तुमको अपना सपोर्ट देंगे, राइट। तो तुम्हें जो भी तुम काम करोगे अभी ये 1 साल, जो भी तुम फोकस कर रहे हो, अकेले करने की जरूरत नहीं है। हमेशा अकेले करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जितना अकेले करोगे उतना स्ट्रेस में होगे, उतना बीमार होगे, उतना थिंकिंग मतलब बहुत सोच, ओवर थिंकिंग होएगा, राइट। तो बोल रहे हैं कि ये वेल, हाँ, तो मतलब जैसे एक घड़े का पानी होता है वेल, राइट। अब घड़े का पानी में से जब पानी चाहिए तो अपने आप थोड़ी ना ऊपर ऐसे लेके आ सकते हैं, राइट। बहुत लोगों की मदद चाहिए होती है, मतलब घड़ा भरने के लिए लोग चाहिए होते हैं ना, पानी डालने के लिए, अपने आप थोड़ी ना मैजिक में अपने आप भर जाएगा, नहीं। तो बोल रहे हैं तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, तुम एक वेल हो, उसमें जो भी है, राइट। अकेले नहीं कर सकते। ये नहीं बोल रहा है कार्ड कि तुम यूजलेस हो, तुम कर ही नहीं सकते अकेले, ऑफ कोर्स कर सकते हो, इतनी चीजें की हैं, राइट। बट कभी कभार मदद लेना भी अच्छा होता है, बुरी चीज नहीं होती। जस्ट बिकॉज तुम मदद ले रहे हो डजंट मीन कि तुम स्मार्ट हो ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर तो बोल रहा है कि तुम घड़े की तरह हो, अगर तुम्हें अपने अंदर शक्तियां डालनी है तो तुम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए और भी लोग चाहिए होते हैं। तो वो बोल रहा है उस पे फोकस करना है। मतलब तुमने इनफ भर लिया अपनी जिंदगी में, अब दूसरे लोगों को भी कुछ करने दो, हार्ड वर्क। तो ये है, आया समझ में? अभी मेरा जिंदगी में मतलब ये है, आप मुझे फ्यूचर बताया। हाँ, अच्छा,
अभी ये बताओ, आपने ये सब जो ये देखते देखो, हो, हाँ, अबंडेंट फ्यूचर विल प्रोवाइड, मतलब बफलो की तरह। जैसे बफलो जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट, बहुत ताकत होती है उनमें। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में विश्वास करते हैं। हाँ, तो वो बोल रहा है कि जितना अपने आप में विश्वास करोगे और बड़ जो भी लोगों की होती है वो कम सुनोगे तो और मिलेगा। मतलब अपने आप को तुम जितना प्यार दोगे उतना ही प्यार तो दूसरे लोगों को दे पाओगे, राइट। अगर तुम अपने आप के लिए टाइम नहीं बनाओगे, अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे, अपने जो भी मानसिक दिमाग पे फोकस नहीं करोगे, तो ये जो भी चीजें जो आ रही हैं वो शायद नहीं आएंगी या फिर बहुत धीरे आएंगी, राइट। तो वो बोल रहा है कि ये आ रहा है, अच्छा फ्यूचर आ रहा है तुम दोनों के लिए, तुम्हारा, हाँ दोनों के लिए ऑफ कोर्स, राइट। वो तभी आएगा जब तुम अपने आप पर विश्वास करना सीखोगे और दूसरे लोगों से उनसे आंसर मांगना बंद करोगे। सब आंसर हमारे अंदर होता है, ठीक है। ये एनर्जी है ओवरऑल। अब जो अभी हमें नहीं पता पर वो आएगा। उल्टा क्यों आएगा? ओके, जो आएगा वो ये है कि भगवान तुम्हारे साथ है। अगेन ईगल, वो सेम किधर है, सेम, ओके, ये कंफर्मेशन है। ईगल की तरह बनो। ईगल रॉयल होता है, किंग या क्वीन जो भी, वो बहुत स्मार्ट से डिसीजन लेती है या लेता है। मैं यहाँ पे इतना एनर्जी डालूंगा, यहाँ पे इतना करूँगी, यहाँ पे इतना करूँगी और इससे ज़्यादा नहीं। तो वो बोल रहा है कि उसकी तरह बनो। और वो बोल रहा है कि जो तुम्हें अभी नहीं दिख रहा पर है, तो है कि भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे तुम अभी ऐसा फीलिंग है कि जिंदगी खत्म, चाहे तुम स्ट्रांग हो, चाहे तुम वीक हो, भगवान हमेशा अच्छा करेगा तुम्हारे लिए। पर पहले तुमको उसमें बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड है कि ये नहीं करना कि सिर्फ हाँ भगवान पे ही छोड़ दूंगा मैं तो, नहीं, ऐसे थोड़ा होता है। नहीं, अपने आप भी तो करना होता है ना कुछ। जैसे बहुत लोग हैं कि हाँ मैं भगवान पे ही छोड़ देता हूँ, पैसे आएंगे तो भगवान ही लेकर आएगा। मतलब हम तो यहाँ पे बैठ के ऐसे पैसे हमारे पास ऑटोमेटिकली थोड़ा ना आएगा, काम हार्डवर्क करना है ना तभी तो आएगा। तो वो बोल रहा है कि भगवान इस दिशा में तुम्हारे साथ है पर तुम्हें भी कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्रो की तरह, ठीक है। अभी आप ये बताओ, ये मुझे जो बता रहे हो, ये सब उल्टा है सब, मुझे जो बता रहे हो, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग, अच्छा, भविष्यवाणी जानना, ओवरऑल एनर्जी ये है। मतलब स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। कभी भी किसी का बदतमीजी सहने की जरूरत नहीं है। जो है मन में बोलो, ये नहीं कि गालियां दे के बोलो, नहीं। मतलब गुस्सा है, पहले अपने आप को ठंडा करो, शांत करो और जो है वो साफ साफ बोलो। क्योंकि कभी कभार लोगों को, जैसे हम थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, कई लोगों को समझ नहीं आता। तो लोगों के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब जो मन में है साफ साफ बोलो मुंह पे, ये मुझे नहीं अच्छा लगता जो तुमने बोला, या फिर तुम चेंज करो या फिर गुड बाय, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तुम्हें वो स्टार्ट करना चाहिए, सबके साथ नहीं, जो तुम्हारे साथ बुरा करे बस। मतलब किसी का बदतमीजी सहने की जरूरत नहीं है। जो है मन में बोलो कि मुझे लगा कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ये बात है, ये मेरे मन में था, मैंने बोल दिया बस, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये करना है, ठीक है। अभी जो नहीं दिख रहा पर हो रहा है या होएगा, पहले है चेंज। चेंज जो मैंने बोला था कि आपके अंदर क्या क्या है जो आपको
चेंज करना है, या फिर कभी कभार हमारे अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं कि हमें चेंज करना है। शायद हम वो चीज़ें बिना सोचे बिना समझे कर रहे हों और लोग हमें बोले कि अरे मैंने ये देखा कि तुम ये करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और हम बोलेंगे हैं पर मैंने तो ये कभी करा ही नहीं है। तो हम बिना जाने बिना सोचे वो चीज़ें करते हैं, राइट? हमें पता भी नहीं है, फिर बाद में सोचते हैं कि शिट मैंने तो 2-3 बार ही ऐसे कर लिया है और ये इतने सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये चेंज करना है। तो फिर अंदर दिमाग में आता है कि शिट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद इसको चेंज करना चाहिए। तो बोल रहा है कि सोचो कि क्या तुम्हें क्या चेंजेस लाने हैं अपनी ज़िंदगी। उसके लिए पहले हमें अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना होता है, ठीक है? जैसे फ़ोन को काम करने के लिए इंस्टॉल करना होता है अपडेट्स, राइट? सेम प्रोग्राम रीप्रोग्राम करना होता है हमें अपने आप को, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि क्या चेंज लाना है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, तुम उसके बारे में सोचो। तुम्हें कभी कभार इरिटेशन क्यों होती है, थकान क्यों होती है, शायद कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया होता है क्योंकि वो आपका पैशन है, क्योंकि आपको सब खत्म करना है एक बार में और घर जाना है पैकअप करके, राइट? पर वो आपको स्ट्रेस दे देता है एंड में, करेक्ट? तो अपने आप को ये सब सवाल पूछो कि क्या चेंजेस लाऊं मैं अपने अंदर कि मुझे थोड़ी खुशी मिले अपनी ज़िंदगी से, ठीक है? तो ये अगर अभी तक चेंज नहीं आया है, आएगा, राइट? एंड लास्ट थिंग इज जो भी मुश्किलें होती हैं वो हमेशा अच्छे में बदल जाता है। और ये भी सोचना है कि मुश्किलें क्यों आती हैं। मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि वो हमें कुछ सिखा रहे हैं, राइट? कुछ एक्सपीरियंस, कुछ लेसन दे रहे हैं कि भैया ऐसे हो गया, टाइम आ गया कि तुम थोड़ा बदल जाओ। अपने आप को नहीं बदलो, पर जो भी वो चीज़ें हैं जो तुम सोचते हो कि शायद कमी हो सकती है, या फिर लोगों ने बोला कि यार ये तुम्हें अपने आप के बारे में ऐसे चेंज करना चाहिए, तो वो टाइम आ गया है चेंज करने का, ठीक है? और इसमें बोला है कि अब जो भी मुश्किलें, तो ये जो ग्रे क्लाउड्स है ये सारी मुश्किलें अभी, राइट? जो भी मुश्किलें हैं वो परमानेंट नहीं है। आपके लिए ये 1 साल में सब चेंज होने वाला है। मुश्किलें अभी है ना, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं होती। कोई भी मुश्किल परमानेंट नहीं होती अनलेस तुमने लाइक किसी का खून या कुछ किया हो, ठीक है? वो अलग बात है। पर जो भी मुश्किल होती है वो मुश्किल इसलिए होती है ताकि तुम स्ट्रांग हो, ताकि तुम में थोड़ा ये रियलाइजेशन हो कि शिट मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मेरे को पता ही नहीं था। मतलब मैं इस मुश्किल का सलूशन तो मेरे पास ही था ऑल अलोंग, पर मैंने सोचा क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम पे जब मुश्किलें चल रही होती हैं हमारा दिमाग सिर्फ मुश्किल पे होता है, हमारा दिमाग कभी भी सलूशन पे नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि थोड़ा पेशेंस लाना है, और कभी ये भूलना नहीं है कि तुम वीक हो, नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो। इसने क्राउन पहना है, मतलब कि तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करते हो। कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, नहीं, वो तुम डिसाइड करते हो। तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चले, रुकी या चले, तुम उस कहानी के कैरेक्टर हो, मेन कैरेक्टर, राइट? तो तुम डिसाइड करोगे कैसे चलेगा। पर ये जो मुश्किलें हैं ये परमानेंट नहीं होती। तो आपके जिंदगी में जो भी अभी मुश्किलें हैं वो सब एंड होने वाला है, ठीक है? वो ये बोल रहा है। थैंक यू सो मच। और ये 3 नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2, 8 एंड 7। 2, 8, 7 इम्पोर्टेंट। 2, 8, 7 नंबर्स है। और कलर्स में कुछ है? कलर्स में येलो कलर, ब्लू, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन, हाँ। और जैसे मतलब जैसे अगर आपको जानना है कि अगर मेरी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो रही है या फिर मैं सही राह पे चल रहा हूँ, तो जैसे अगर फ्लावर्स मिलेंगे, येलो फ्लावर्स, ओके, एक साइन है। अगर बारिश मतलब पानी मिला रोड पे कहीं,
या फिर कहीं भी पानी, ठीक है, तुम्हारा पैर पानी में लग गया या कुछ हो गया, वो एक साइन है कि हाँ तुमने रिफ्लेक्शन किया है और तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। एंड बहुत सारे प्लांट्स, ये रेड कलर रोजेस एक साइन हो सकता है, ग्रीन प्लांट्स एक साइन हो सकता है, और आग अगर दिखा तो वो भी एक साइन हो सकता है, एंड ये येलो फ्लावर्स, ठीक है, ये सब मतलब साइंस है। ओके, थैंक यू वेलकम। मेरा भविष्यवाणी बताने के लिए।